Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. Last time we studied about Machiavelli's views on religious and morality. He gave some importance to religious and morality. Although he was Christianity, he was not more in बहुत ज़्यादा फेवर क्रिश्चियनिटी की नहीं था वो. Okay. Then we saw the more indifferences of Machiavelli. Moral indifferences of Machiavelli, in that he didn't believe in ethicals, right? All that we saw in the next one. Today we are going to start with the new topic, that is theory of statecraft. Machiavelli contributed to the theory of statecraft when he shook the foundation of the age-long Greek philosophy of city-state and its place pleaded for national state. See, Machiavelli contributed to the theory of statecraft. Like Machiavelli ने theory of statecraft के लिए कब contribute किया? When the foundation of the Greek philosophy of city-state and its place pleaded for national state. जब ग्रीक का फाउंडेशन थोड़ा हिल गया था और को थोड़ा सा सेटल होने के लिए टाइम चाहिए था, तब he came up with the theory of statecraft. The concept of city-state had outlived its utility. See, the concept of city-state had outlived its utility, मतलब उसका एक importance था. The world needed another conception which Machiavelli rightly pleaded. His conceptions of national state is being followed even today. See, उनके जो कंसेप्ट थे स्टेट क्राफ्ट को लेके वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और अपन आज भी नेशनल स्टेट इज़ बीइंग फॉलोड इवन टुडे. आज भी अपन वो फॉलो करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट. क्या थे वो? एडवाइस टू द प्रिंस अबाउट स्टेटक्राफ्ट. प्रिंस को उन्होंने क्या एडवाइस दिया? मैचियावेली द प्रिंस इज इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस गिवन टू द रूलर ऑन द स्टेटक्राफ्ट. सम सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द एडवाइस टू द रूलर आर एज फॉलो. मैचियावेली द प्रिंस इज इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस. वो रूलर्स को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं. अब क्या एडवाइस देना चाहते हैं? हैव अ लुक एट इट. एंड दिस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. ये एडवाइस ज़रूरी था रूलर को फॉलो करने के लिए, एज इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. Machiavelli elaborates the doctrine of raison d'etat. It means reason of state. मैचियावेली ने फर्स्ट पॉइंट ये है, मैचियावेली elaborates the doctrine of raison d'etat. It means reason of state. It implies actions and policies promoting safety and security of the state. ये क्यों था? ये certain actions और policy ज़रूरी था for the safety and security of the state, because the state must prevent itself before it promotes the welfare of the people. Because state को क्या करना था? स्टेट का क्या काम है? उनको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, राइट? लाइक वहाँ पे लोगों की रक्षा करना है, उनको प्रिजर्व करना है और उनके अच्छे के लिए काम करना है. According to him, in politics, one is guided by the harsh reality of political life, which is a struggle for power and survival. See, according to Machiavelli, one is guided by the harsh reality of political life, which is a struggle for power and survival. See, पॉलिटिक्स कैसा है आज अपना पॉलिटिक्स आज कैसा है? एकदम हार्श है. बट एक रियलिटी भी तो है. रियल में कितना हार्श है अपना पॉलिटिक्स एक्चुअल में बहुत हार्श है और हर कोई पावर और सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है, राइट? हर किसी को पावर रहना चाहिए, पावर चाहिए अपने हाथ में और उसके लिए वो जी जान से स्ट्रगल भी करता है. The action of the state must be judged only on the basis of raison d'etat, that is independent. See, state का action किस पे डिपेंड रहता है? State's action is based on the raison d'etat, that is independence, self-sufficient and well ordered and well maintained state. कैसा होना चाहिए स्टेट? कैसा चाहिए अपने को? इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट एंड वेल ऑर्डर्ड एंड वेल मेंटेन्ड स्टेट चाहिए.
Machiavelli advised the prince in preserving and safeguarding this type of state. All means adopted by the state are justified. See, Machiavelli advised the prince in preserving and safeguarding this type. Machiavelli ने क्या किया? He advised the prince in preventing and safeguarding this type of state. All which are adopted for the safety by the state are justified. Prince should give priority to power. See, prince ने पावर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. Morality and ethics have different sphere. Morality और ethics दोनों अलग अलग है. हाँ, morality यानी क्या? किस तरह से आपको काम करना चाहिए. हाँ, सही झूठ का फ़र्क समझो. और ethics यानी सही गलत का रास्ता देखो, क्या सही है क्या गलत है ये सब समझो. सो morality and ethics दोनों अलग अलग है. It cannot be managed with the reason of the it cannot be mingled with the reason of the state. ये morality और ethics आप दोनों mix नहीं कर सकते, right? As the both concept are different, you can't mix in the state. To a prince, power of state is of supreme importance. A prince power state में क्या है? Prince का power in the state is of supreme importance, like सबसे ज़्यादा important है. Self-sufficient of the state means the state will have its own army, a strong and unified government, unity and integrity among the people, and solid economic foundation. See, self-sufficient of the state means अभी अपन self-sufficient की बात कर रहे हैं. Actually self-sufficient यानी क्या यहाँ पे? Means the state must have its own army. State के पास अपना army होना चाहिए. It should be strong. प्रॉपरली गवर्नमेंट रहना चाहिए. और स्टेट में सबसे पहले यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अमंग द पीपल रहनी चाहिए. एंड सॉलिड इकोनॉमिक फाउंडेशन रहना चाहिए. अपना इकोनॉमिक फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, राइट? क्यों चाहिए ये सब चीज़? अगर अपन सेल्फ सफिशिएंट रहा अपना स्टेट तो अपने को किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं ना. अपन सब कुछ अपना खुद का खुद कर सकते हैं. अपनी खुद की आर्मी चाहिए ताकि कोई अदर कंट्री अदर फॉरेन कंट्री अपने पे अटैक करे तो वी आर रेडी फॉर इट, राइट? अगर किसी और की आर्मी रही तो क्या होगा? एज यूजुअल अपना स्टेट तो खतरे में ही रहेगा. और प्रॉपर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रहना चाहिए. स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट यानी फटाक से सही डिसीजन लेने का टाइम आया डिसीजन क्विक डिसीजन लेने का तो क्विक डिसीजन लेना चाहिए. सी, मोदी गवर्नमेंट ने एक कितना अच्छा डिसीजन लिया. हैव यू सीन दैट उरी मूवी? हाँ, कैसे अपन पाकिस्तान में घुस के उधर उन लोगों को मारा, कैसे वो सीक्रेट ऑपरेशन चला. डज एनीवेयर वन एंड कोई अवेयर था उसके बारे में? नहीं, कोई अवेयर नहीं था, बट वी डिड दैट, राइट? सो स्टेट शुड बी स्ट्रॉन्ग और गवर्नमेंट भी एकदम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अमंग द पीपल. सी, अगर लोग अपन सब यूनाइटेड रहेंगे तो अपन कुछ भी कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट रॉन्ग रहेगी तो भी अपन अगर पूरे लोग एक यूनाइटेड रहेंगे तो गवर्नमेंट को भी अपन चेंज कर सकते हैं. सो यूनिटी इज़ अ मस्ट. जैसे देखो, अगर किधर बाढ़ आ जाती है, जैसे केरला में बाढ़ आई तो बाकी सब स्टेट्स ने हेल्प की ना केरला को. हाँ, किया ना हेल्प बाकी सब स्टेट्स ने केरला को. दिस इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी. आज उधर दिल्ली साइड अपन ने देखा ना, पंजाब साइड में फार्मर्स लोग लड़ रहे. सारे फार्मर्स इकट्ठा होके उनकी मांगे पूरी करो. लाइक दे हैव सम डिमांड विच द गवर्नमेंट शुड फुलफिल. फॉर दैट दे आर स्ट्राइविंग हार्ड. सारे फार्मर्स इकट्ठा है. जिस द गवर्नमेंट जब बंद बोलता है, हाँ, महाराष्ट्र बंद, तो क्या है? एवरीवन ट्राइज टू फॉलो दैट, राइट? करते हैं ना अपन, क्योंकि अपन सब एक है. एंड यूनिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. से जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बोला था, फर्स्ट लॉकडाउन था तो क्या था? पूरा भारत बंद था ना. सेकेंड लॉकडाउन में भी पूरा भारत बंद था, राइट? बंद मतलब प्रॉपर बंद. जिनको परमिशन है वही खुला रखेगा. लाइक मेडिकल वॉज ओपन एंड ग्रोसरी शॉप्स वर ओपन फॉर ए लिमिटेड टाइम. बट जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया तो सब लोग चुपचाप घर पे बैठे थे, राइट? 2 लॉकडाउन तो सब लोग चुपचाप घर पे बैठे थे. उसके बाद धीरे धीरे सबने काम चालू किया, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ यूनिटी. और अपना इकोनॉमिक फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सेकेंड इज एंड जस्टिफाइज द मीन. It is a very famous statement of Machiavelli
विच इज जस्टिफाइज फॉर द रीजन स्टेट। एक क्या है फेमस स्टेटमेंट ऑफ मैचियावेली, क्या है, विच इज जस्टिफाइड फॉर द रीजन ऑफ स्टेट, it is justified for the reason of state. He assumes that state is highest form of human association. What he assumes that कि बाबा स्टेट क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग रहते हैं, तो एसोसिएशन सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग का ही रहेगा। स्टेट इज टू बी वर्कशिप लाइक अ deity even by sacrificing the individual. सी अपन स्टेट का वर्कशिप करना चाहिए, राइट। वर्कशिप करेंगे तो क्या होगा, स्टेट की अगर आप भगवान जैसा अपने स्टेट को रखोगे तो क्या होगा, आपका ही भला होगा ना। एवरीथिंग वुड गो ऑन पीसफुली, सब कुछ अच्छे से चलेगा। अगर स्टेट के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो जान दे दो। जैसे अपने सोल्जर्स देश के लिए अपने काम करते हैं, देश के लिए ही काम करते हैं ना अपने सोल्जर्स, और देश के लिए मर मिटते भी हैं, राइट। देश के लिए मर मिटना भी उनका ही काम है। सी दिस इज द व्हाट द सोल्जर्स डू फॉर अस, राइट। सोल्जर्स करते हैं ना अपने लिए, देश के लिए मर मिटना है तो मर मिटने को भी तैयार रहते हैं, वो अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं सोल्जर्स, राइट। सेम वे हर किसी को, हर इंडिविजुअल में इतनी ताकत रहनी चाहिए कि वो अपने स्टेट के लिए अपनी जान भी दे सके। where we were, a ruler must remember that whatever brings success and power is virtuous, even cunningness, shrewdness and justifies. जो भी रूल कर रहा है वहाँ पे उसको ध्यान में रखना चाहिए। अपने को पावर सक्सेस किसके लिए मिला, ये लोग हैं इसलिए मिला ना, तो अपने को लोगों के लिए ही काम करना है, उनकी भलाई के लिए ही काम करना है। पॉलिटिक्स इज़ द मोस्ट प्रिकॉशियस गेम। पॉलिटिक्स क्या है, ये बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है। पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इट्स अ गेम एंड यू वन शुड प्ले इट वेरी केयरफुली। इट कैन नेवर बी प्लेड इन अ डिसेंट एंड ऑर्डरली मैनर। पॉलिटिक्स कैसे, अभी हर चीज़ करने का एक स्टेप रहता है, एक तरीका रहता है। पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कोई स्टेप नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो पॉलिटिक्स आप ऐसे खेल ही नहीं सकते, राइट। द स्टेट हैज़ some primary objective and responsibilities like protection of the maintenance of law and order and looking after well-being of its member. See, स्टेट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड लुकिंग आफ्टर वेल-बीइंग ऑफ इट्स मेंबर। स्टेट का ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन करो और देखो कि सब मेंबर अच्छे से रह रहे हैं या नहीं। हेंस स्टेट मस्ट हैव एडुकेट मीन्स एट इट्स डिस्पोजल। स्टेट के पास क्या चाहिए, एडुकेट मीन्स चाहिए ताकि वो सब कुछ अच्छे से कर सके। पावर्स चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए, सर्टन ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, तब भी सब कुछ काम अच्छे से कर पाएगा। स्टेट इज सोवियत, autonomous and non-religious. Machiavelli said that the state is superior to all association in the human society. अभी मैचिवेली क्या बोल रहा है, स्टेट क्या है, ये स्टेट इज सुपीरियर टू ऑल एसोसिएशन इन द ह्यूमन सोसाइटी। स्टेट क्या है, सबसे सुपीरियर है। हाँ, अगर स्टेट ही नहीं रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग कैसे चल रहेंगे। हाँ, ह्यूमन बीइंग का कुछ इम्पोर्टेंस है क्या, नहीं। तो स्टेट सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। स्टेट अगर अच्छे से काम करेगा तभी तो सब कुछ अपन खुश रह पाएंगे। इट इज़ सोवियत एंड इज ऑटोनॉमस, मॉरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन कैन नॉट बाइंड द प्रिंस। सी इट इज़, स्टेट क्या है, ऑटोनॉमस है, उसमें बहुत सारे रिलीजियस है, मॉरलिटी है, कुछ ना कुछ, तो ये सारे आप एक साथ रहते हैं स्टेट में और सब एक दूसरे से लिंक्ड है। बट लिंक्ड मतलब ऐसे नहीं कि लाइक या कम्प्लीटली एक दूसरे में एक का इम्पोर्टेंस दूसरे को दो, ऐसा नहीं, हर चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ही कैन यूज रिलीजन टू रिलीज हिज एंड्स। अभी रिलीजियस आप यूज़ कर सकते हो टू रियलाइज द एंड्स। आपका जो भी एंड है, जो भी थॉट है, वो रियलाइज करने के लिए रिलीजियस ज़रूरी है।
religion cannot influence politics and the church cannot control the state. See, आप रिलीजियस को एक मोहरा बना के पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, नॉर चर्च कैनॉट कंट्रोल द स्टेट। लाइक एक चर्च ही पूरा स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकता था। पहले क्या होता था, ये चर्च सारे कंट्रोल करते थे, बट यहाँ पे बोला है द चर्च कैन नॉट कंट्रोल द स्टेट। इन फैक्ट Soviet state enjoys absolute power over all individuals and institutions. See, in fact, state को क्या मिलता है, पूरा पावर मिलता है कोई भी इंस्टीट्यूट चलाने का और इंडिविजुअल को ध्यान रखने का। State must necessary of all institution. State is क्या है, state ज़रूरी है सारे इंस्टीट्यूशन के लिए। It stands on a wholly different footing and thereby be judged by different standards. See, it stands on wholly different footing. ये स्टेट सारा इंस्टीट्यूशन सारा एक दूसरे से लिंक है, बट सबका अलग अलग एक स्टैंड है, देयरफॉर सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी है। Some power is the end and religion is its organ and instrument. State power is the end and religious is its organ and instrument. See, state power is the end. State power क्या है, ये एक end भी है, and religion is its organ and instrument. और religion क्या है, religion उसका एक organ है और instrument भी है। State, सिर्फ स्टेट को क्या बोला उन्होंने, स्टेट एक एंड है, एक तरीका है। स्टेट पावर को भी एक लिमिट है, बट अभी बॉडी अगर कंपेयर करो तो स्टेट पूरा बॉडी है और रिलीजन आर इट्स ऑर्गन एंड इंस्ट्रूमेंट। नथिंग इज अनअर्थली इन द स्टेट। लाइक स्टेट में ऐसा कुछ भी अलग कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। स्टेट केम इन टू बीइंग टू सेटिस्फाई मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सी, स्टेट came into beginning to satisfy the material interest. State क्यों आता है, state came here for satisfying the material interest of the people. He divorced politics from theology and government from religion. See, he divorced politics from theology and government from religion. He did not view the state as having a moral end and purpose. उसने स्टेट को ऐसा कोई मॉरल एंड और मॉरल पर्पस के साथ एंड ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट गेव इम्पोर्टेंस टू मैंस वर्ल्डली लाइफ। स्टेट को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देख के ही गेव इम्पोर्टेंस टू द मैंस वर्ल्डली लाइफ। ही सेड पॉलिटिक्स इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी विथ इट्स ओन प्रिंसिपल्स एंड लॉस। उसने क्या बोला, पॉलिटिक्स से क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, वो एक अलग ही एक्टिविटी है विथ इट्स ओन प्रिंसिपल एंड लॉज। प्रिंसिपल एंड लॉज क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। पॉलिटिक्स ये एक अलग ही एक्टिविटी है विथ इट्स ओन इंटरेस्ट, मतलब अपने पॉलिटिक्स के लॉज प्रिंसिपल सब अलग अलग है एंड दे कीप ऑन चेंजिंग। अ प्रिंस मस्ट कंबाइन द क्वालिटीज ऑफ अ लायन एंड अ फॉक्स। सी, प्रिंस में क्या रहना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लायन एंड अ फॉक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज अ प्रिंस। मैचिवली एडवाइज द प्रिंस ही शुड इमिटेट द क्वालिटी ऑफ फॉक्स एंड लायन। मैचिवली प्रिंस को क्या बोल रहा है, उनके इसमें क्वालिटी ऑफ फॉक्स एंड लायन दोनों की रहनी चाहिए। द इमिटेशन ऑफ द फॉक्स, कनिंगनेस, फोरसाइट, राइट। फॉक्स की क्या क्वालिटी रहनी चाहिए एक प्रिंस में, कनिंगनेस। फॉक्स कैसा कनिंग रहता है, हाँ, और फोरसाइट, फॉक्स बहुत फोरसाइट मतलब जैसे तुरंत देख लेता है, तुरंत समझ लेता है, बहुत होशियार रहता है, ऐसा कनिंग और होशियार रहना चाहिए। विल अनेबल हिम टू विजुअलाइज हिज गोल एंड मीन्स टू अचीव इट। अगर फॉक्स जैसे आप कनिंग और फोरसाइट रहे तो क्या होगा, प्रिंस अपने गोल अच्छे से समझ पाएगा, देख पाएगा एंड वो तरीका भी ढूंढ लेगा वो गोल अचीव करने के लिए, राइट। वो गोल अचीव करने के लिए आपको नया तरीका भी मिल जाएगा। द इमिटेशन ऑफ लायन विल गिव हिम नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड फोर्स टू अचीव दैट गोल। अभी लायन के पास क्या रहती है, लायन के पास एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहती है, हाँ, तो
लायन जैसा क्यों बोल रहे हैं वो, ताकि आपको लायन की जैसी स्ट्रेंथ मिले एंड फोर्स मिले। हाँ, लायन कितने फोर्स से उसका शिकार करता है, राइट। कितने, जब झपटा मारने का टाइम आता है तो ही डज एवरीथिंग वेरी फोर्सफुली, राइट। तो टू अचीव दिस गोल, सी फॉक्स के जैसा आपको कनिंग और फोरसाइट बनना है, ताकि आपको आपके गोल समझे और आप वो गोल आपके अचीव कर सको। सेकेंड थिंग, आपको लायन जैसा क्यों बनना है, क्योंकि लायन जैसे आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे आप आपके गोल अचीव कर सकते हो। अ फॉक्स might have shrewdness and foresight, but he is powerless without necessary force of lion. सी फॉक्स क्या है, फॉक्स बहुत कनिंग रहता है, बहुत तेज़ देखना करना रहता है, बट उसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं रहती है। जब वो लायन के सामने आ जाता तो क्या है, बट ऑब्वियसली लायन ही जीतेगा, फॉक्स को तो मार ही डालेगा। बट तो लायन के जैसा उसको फोर्स चाहिए, राइट। सी आपको कनिंगनेस, फोरसाइट फॉक्स जैसा चाहिए और लायन जैसा फोर्स चाहिए। सिमिलरली a lion without shrewdness and prudent of a fox would be reckless, right। और लायन के पास क्या कमजोरी है, लायन कनिंग तो है नहीं, और स्क्रूडनेस मतलब होशियारी से सब काम तो नहीं कर सकता, तो वो फॉक्स के से सीखना चाहिए। हेंस अ रूलर हु वांट टू बी सक्सेसफुल मस्ट कंबाइन इन हिमसेल्फ द क्वालिटी ऑफ बोथ फॉक्स एंड लायन। सी अगर आपको अच्छे से रूल करना है तो आपको कंबाइन करनी चाहिए क्वालिटी ऑफ फॉक्स एंड लायन की। ही मस्ट पोजेस ब्रेवरी ऑफ लायन एंड कनिंगनेस ऑफ फॉक्स। सी रूलर के पास क्या चाहिए, ब्रेवरी, लायन जैसा ब्रेव चाहिए, और कनिंग फॉक्स जैसा चाहिए। फिजिकल फोर्स इज नेसेसरी व्हेन देयर इज आर्चरी एंड इनडिसिप्लिन, राइट। फिजिकल फोर्स नेसेसरी है जब वहाँ पे आर्चरी एंड इनडिसिप्लिन है, बट लॉ एंड मोरालिटी इज इसेंशियल टू चेक सेल्फिशनेस ऑफ पीपल एंड टू ग्रेट सिविल वर्च्यूज। बट लॉ एंड मॉरलिटी भी नेसेसरी है ताकि बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोगों से बचने के लिए, राइट। अगर बहुत ज़्यादा सब कोई सेल्फिश हो गए तो कभी कोई खुश रह पाएगा नहीं, तो लॉ एंड मॉरलिटी भी ज़रूरी है। यूज डबल स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, one for the ruler and another for his subject. He said morality is not necessary for the ruler. See, one for the ruler, see, use double standard of politics. See, politics क्या है, डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं ना, आज एक बोलेंगे और नेता, आज एक कोई जो भी है नेता आज एक चीज़ बोलेगा और कल कोई दूसरी चीज़ बोल देगा, राइट। तो क्या है, वन फॉर द रूलर एंड अनदर फॉर हिज सब्जेक्ट। ही सेड मॉरलिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर द रूलर। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉरलिटी रूलर के लिए ज़रूरी नहीं है। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ लॉ एंड मॉरलिटी हैंस प्राइज इज अबाउट द बोथ। सी ये प्रिंस क्या है, ये लॉ बनाता है, तो अगर प्रिंस लॉ फॉलो करेगा तो अपने आप उसमें मॉरलिटी आ जाएगी। तो ये मॉरलिटी प्रिंस के लिए लागू नहीं होती, बट जो स्टेट है उसके लिए ये मॉरलिटी लागू होती है, राइट। स्टेट के लिए क्या है, मॉरलिटी और लॉ दोनों लागू होते हैं। अ रूलर हैज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ प्रिजर्विंग द स्टेट। तो रूलर का एक प्राइमरी ड्यूटी क्या है, उसके स्टेट को प्रिजर्व करना। सो प्रिजर्विंग द स्टेट इज द प्राइमरी ड्यूटी। फॉर दिस पर्पज ही मे यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाई, कॉन्स्पिरेसी, किलिंग एंड मैसेक्रेस एक्सेट्रा। अभी स्टेट को बचाना है, स्टेट को बचाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ कर सकता है, कभी झूठ भी बोल सकता है भलाई के लिए, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, किसी को मार भी सकता है, मैसेक्रे भी हो सकती है, लाइक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कुछ भी कर सकता है। बट स्टेट अपना बचाने के लिए प्रिंस कुछ भी कर सकता है। बिकॉज एब्सोल्यूट मोरालिटी इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल इन पॉलिटिक्स। सी पॉलिटिक्स में एक्चुअल प्रॉपर मॉरलिटी कुछ काम की नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा डिजायरेबल इन पॉलिटिक्स इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ही इंसिस्टेड दैट मॉरलिटी इज इसेंशियल फॉर पीपल। तो क्या बोलते हैं, मॉरलिटी ये लोगों के लिए ज़रूरी है, राइट। बराबर है ना। लाइक अगर आप पॉलिटिक्स में उतर गए और आप पॉलिटिक्स सारे रूल्स मॉरलिटी सबके साथ चलते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा पॉलिटिक्स में आपको। आप बहुत जल्दी निकल जाओगे सत्ता से, राइट। अगर आपको पॉलिटिक्स में बने रहना है
तो क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा डाव पिच खेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गोलमाल करना पड़ता है एंड ऑल, तब भी आपके पास पावर रहेगी, वरना आपके पास पावर नहीं रहेगी। Only moral citizen willingly obey law of the state and sacrifice their lives for their nation. Only moral citizen, जो सच में अच्छे सिटीजन है, वो अपने स्टेट के लॉ फॉलो करेंगे और अपने स्टेट के लिए अपनी जान भी दे देंगे। लाइक आवर सोल्जर, दे डिवोट देयर होल लाइफ टू द नेशन। अपनी भारत माँ के लिए वो मरने के लिए भी तैयार रहते हैं, राइट। अगर कुछ संकट आए तो वो कभी पीछे नहीं हटते। डू यू सी द इंडियन, आप देखते हो ना इंडियन आर्मी, अगर किधर बाढ़ आ गई तो भी आर्मी आती है लोगों को बचाने के लिए, राइट। अगर किधर बहुत ज़्यादा रायट्स हो रहे तब भी वो आर्मी पहुंच जाती है। वो अपने बॉर्डर पूरे प्रोटेक्ट किसे, आज अपन सेफली वी आर एट होम जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सोल्जर हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर आवर कंट्री, राइट। इट कल्टिवेट्स civic सेंस एंड पेट्रोइटम स्पिरिट। सी, जो सच में सब कुछ लॉ वगैरह ओबे करता है, अपनी स्टेट के लिए, अपने नेशन के लिए जान दे सकता है, वो क्या है, वो उसको हर चीज़ की जानिब रहती है, एक पैट्रियोटिक स्पिरिट रहता है, राइट। पैट्रियोटिक स्पिरिट यानी लाइक कंट्री के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम। दस मैचिवेलिस प्रिस्क्राइब डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी। तो यहाँ पे मैचिवेली ने डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी बोला है। I think we'll end up our lecture here. In next lecture we'll study with the sixth point, that is the favored despotic ruler maintain strong army। ये सारे अपन next lecture में देखेंगे। Meanwhile, whatever we have studied today, just read it carefully. If you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.